ओके, बिहाइव एंड मोमेंट्स लास्ट ईयर चला करते थे, बट फ्रॉम दिस ईयर आपके साथ जो है बेटा कावेरी बुक चलेगा फिर, राइट? तो कावेरी बुक का फर्स्ट पोएम है, और दिस पोएम नेम इज दैट भारत लैंड. This poem is composed by Subramaniam Bharati. Okay, now this poem contains only 3 stanzas. First stanza, second stanza, and then third stanza. Now, in this poem, poet Subramaniam Bharati has talked about that how India is a rich country. Rich means, full of things, full of informations, full of materials, full of qualities. Means, अब इंडिया किसी भी एंगल से पीछे नहीं है. आप यहां पे पोएट इंडिया की जो नेचुरल बैकग्राउंड, नेचुरल सीनरीज, नेचुरल ब्यूटी को बहुत ब्यूटीफुल्ली डिस्क्राइब किया है. साइड बाय साइड हाउ इंडिया इज ए रिच कंट्री, ए डेवलप्ड कंट्री, एडवांस कंट्री बाय मैटर ऑफ सम इंफॉर्मेशंस लाइक लैंग्वेज, स्क्रिप्चर्स, लाइक कल्चर्स, ट्रेडिशंस. इट्स ए long antiques informations are there. So writer Subramaniam Bharati tells a feeling of pride, a feeling of national pride he is feeling, and his way of expressions, his way of presentation style tells, he often uses these words, ours, it's my country, it's our country. बार बार जो ये बात कह करके उन्होंने एक्सप्रेस किया क्या है, that writer feels proud because India contains, India has everything. Now, he is beautifully describes that how India is a rich one, a beautiful one, and there is a abundant, means lot of examples. For example, the mighty Himwant is ours. दुनिया में ऐसा कोई पहाड़ नहीं है, ऐसा कोई पर्वत नहीं है. There is no equal anywhere on earth. ये हिमालय की तरह जो है कहीं दुनिया में आपको क्या नहीं मिलेगा? पहाड़ नहीं मिलेगा ना, हिल नहीं मिलेगा ना. The generous Ganga is ours. कहां जाओगे? दुनिया में ऐसा कोई गंगा नहीं है, ऐसा हॉलीएस्ट गंगा नहीं है तो बड़े बड़े है. That means longest one, larger one, wider one. River, Nile, Amazon, बहुत सारे हैं, बट जेनरस गंगा, हॉलीएस्ट गंगा, ग्रेसफुल गंगा जैसा और कोई पवित्र नदी दुनिया में और कहीं नहीं दिखेगा. क्या है? Which other river can match her grace? कौन सा ऐसा क्या है रिवर है जो गंगा के साथ तुलना किया जा सकता है, गंगा की पवित्रता के साथ तुलना किया जा सकता है? There is none. The sacred Upanishad are ours. In India, Sanskrit language, the old books written in Sanskrit language like Veds. Okay, there are 4 Veds: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and Atharv Veda. ये जो बेटा, that means these are that 4 Vedas. 4 Vedas are called to be that the oldest books, oldest scriptures written in, composed in Sanskrit language. Sanskrit language is Indian language. From Vedic information there comes Upanishads. Okay, so Upanishads are that it talks about what? Knowledge. It talks about that Upanishad tells that what is called Atma and what is called Brahman. Means the God, reality of God, existence of God. तो उपनिषद एक ऐसी बुक है, ऐसी स्क्रिप्चर है जहां पे ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस एंड गॉड का एग्जिस्टेंस को बहुत ही लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया गया है. व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम. और भी स्क्रिप्चर्स हैं, दैट मींस द कुरान है, द बाइबल है, ओके, और अदर्स स्क्रिप्चर्स बुक्स आर देयर्स. बट अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम भारती, दिस उपनिषद्स आर रियली द रेयरेस्ट स्क्रिप्चर्स in the world. Okay, and then there is another one poet describes that there is a sunny golden land is ours. Sunny means, sunny refers to brighter, चमकीला. यहाँ पे देखो, sunny refers to not that golden ones. golden आप कह सकते हो. जब इंडिया में green land जब turns into what? Turns into ripe crop. You can see that there is a wheat. बेटा wheat crop जब जो है रिपन हो जाता है ना, पक जाता है, तो entire environment looks sunny gold. Farmer makes environment suitable for cultivations.
और जब कल्टीवेशन करके बेटा दैट मीन्स उसमें पेड़ पौधे उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, तो इट गिव्स रियली गुड लुकिंग वन, ब्राइटर वंस, चमक ही अलग है. तो पोइट इज टेलिंग शी रिफर्स टू हियर इन आवर भारत, इंडिया, शी इज पियरलेस. पियर बोले तो इसका कोई मैच नहीं है, इसका कोई दोबारा नहीं है, दैट मीन्स इसका कोई सिमिलर कोई नहीं है. मीन्स आप दुनिया के जग घूम लो बेटा, वर्ल्ड घूम लो, इंडिया जैसा कोई कंट्री नहीं मिलेगा आपको. राइट, लेट्स प्रेज हर. चलो सब लोग मिलके इंडिया की तारीफ करें, इंडिया को एडमायर करें. एंड दिस वे आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टैंजा. अच्छा, कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने देखो लिखा है. हिमवंत रिफर्स टू हिमालय, जेनरस रिफर्स टू काइंड एंड सॉफ्ट, ग्रेस रिफर्स टू हॉली और प्योर और प्रोवाइडर. दैट मीन्स उस हॉली रिवर से बहुत सारे लोगों की जो है जीविका निर्वाह होती है. ठीक है, ओके. स्क्रिप्चर्स, सैक्रेड मींस हॉली, प्योर, स्क्रिप्चर्स मींस हॉली बुक. ओके. सनी गोल्ड रिफर्स टू सुटेबल लैंड, फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशंस, ऊर्जा जमीन को कहा गया है. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा पोएट इज टेलिंग व्हाट, गैलेंट. हमारे इंडिया में और क्या है, दिखाएं. आओ सुने, तुम्हें दिखाएं, आओ बताए हैं. यानी कि सुब्रमण्यम भारती आज फील्स इतना हाई प्राउड, ऐसा लग रहा है कि उनका हार्ट, उनका दिल जो है सब लोगों को ऐसे बुला करके आओ तुम्हें सुनाएं. कौन सी बात सुनाएं, ये बात सुनाएं, वो बात सुनाएं, आओ दिखाएं, एक एक करके सुनाएं. तुम्हें क्या सुनाएं. सेकंड स्टैंजा में जाके पोएट कह रहे हैं क्या है, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर. गैलेंट मींस ब्रेव, बहादुर. इंडिया में कौन नहीं है, खुदीराम है, अशफाकुल्लाह है, भगत सिंह है, कितने सारे नाम लिया जाए बेटा, फ्रीडम फाइटर्स, कितने सारे पूर्वज लोग जो है फाइट करके गए हैं. ओके. नेताजी सुभाष कहां से थे, इतना हीरो की तरह. ओके. और फिर कौन है, विनय बदल दिनेश कहां के थे बेटा, मंगल पांडे कहां के थे बेटा, इतने बहादुर हैं. आंख खोले बेटा, आंख खोलोगे तो फिर चौंक जाओगे आप. गैलेंट, ब्रेव वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, इसी कंट्री में तभी जिया करते थे. ओके. मेनी ए सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड. सैंक्टिफाइड मींस प्यूरिफाइड. मेड दिस लैंड ग्लोरिफाइड. अच्छा, हु आर द सेज? सेज रिफर्स टू राइटियस पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपर्ट्स. ओके. अच्छा, कभी आप बचपन में वो सुने हो, सप्तऋषि बोले तो 7 ऋषिज, ऋषि मुनीज. अच्छा, ऋषि मुनि किनको कहा जाता है, जो नॉलेज में एक्सपर्ट हुआ करते थे. अच्छा, 7 ऋषि मुनीज का यहाँ पे मैंने नाम लिखा है. अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स देयर आर 7 ऋषिज मुनीज हैं, जैसे कि वशिष्ठा एक है, विश्वामित्र है, अगस्त्य है, ओके, आरती है, कश्यप है, चारक है, कपिला है. ये दीज आर प्रोमिनेंट 7 ऋषिज हैं, सेज हैं, नॉलेजेबल पर्सन है. तो ये सेज इंडिया में ही अवेलेबल है. नॉट ओनली दैट, भास्कराचार्य का नाम सुने हो आप, आचार्य भट्ट का नाम सुने हो आप. ओके. ये सारे लोग भी सेज हुआ करते थे, नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपर्ट हुआ करते थे. द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर. कितने सारे एक्सपर्ट म्यूजिशियन हैं यहाँ पे, कितने सारे सिंगर्स हैं यहाँ पे. हम तो जहां तक जान रहे हैं बेटा, इंडिया के जैसे सिंगर्स कहीं और नहीं है. बट सिर्फ ये मेलोडियस ट्यून की वजह से नहीं. आज देखो कितने सारे जो है फ्लूट सिंगर भी हैं, कितने सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंटल सिंगर भी हैं. आपने कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम सुने हैं? यही डुमराव में रहने वाला था. डुमराव, बक्सर के बगल में जो है डुमराव जगह है बेटा, बिहार में. भाई उनका सिंप्लिसिटी वॉइस, डिवाइन मेलोडी, attracted and pacified and enraptured the entire people of the entire world. Not only that, लता मंगेशकर का नाम सुने हैं आप, किशोर दा का नाम सुने हैं आप. ये सारे कौन है बेटा ये सारे तो म्यूजिशियन हैं. ये सिर्फ मूवीज के लिए नहीं है बेटा फेमस है इन लोग की. बट स्पिरिचुअल सॉन्ग आप सुनोगे ना, स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनोगे ना, भक्ति गीत सुनोगे ना बेटा, दिल खुश हो जाता है. फिर लगता है कि दिल को कितना सुकून मिल गया है. तो ये सारे जो दैट मीन्स सोलफुल सॉन्ग सिंगर्स, वो ट्रेडिशनल कल्चर इंडिया में ही है. इतनी सारे हॉली रिलेटेड टू रिलीजियस बुक्स, रिलेटेड टू धर्म. म्यूजिक को भी बेटा जोड़ देते कहां पे, धर्म के साथ, धर्म को भी जोड़ देते म्यूजिक के साथ. ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी हमारे इंडिया में ही है. एंड हियर ऑल द ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड. यही इंडिया में एक ऐसी चीज है बेटा. अरे आप शहनाई देखे हो ना, जब किसी हिंदू परिवार में जब शहनाई बजती है, जब मैरिज सेरेमनी, और फिर जब शहनाई बजती है, वाओ, सिर्फ वो फैमिली मेंबर्स नहीं, अबाउट 1 to 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर दराज के लोग क्या करते हैं, गेट स्पेल बाउंड. आज किसी की घर जो है
शहनाई बज रही है, मीन्स व्हाट, मैरिज सेरेमनीज। तो पोएट इज टेलिंग, पोएट कौन सी बात ना बताए आपको जो इंडिया में है ही नहीं। इंडिया इज रियली ए रिच कंट्री। इंडिया में क्या चीज नहीं है। आ जाओ। हियर राइटर इज टेलिंग, हियर ब्रह्मा द नॉलेजेबल हैज टेकन रूट। ब्रह्मा द नॉलेज, एक ऐसी, भारत एक ऐसी जगह है बेटा जहां पे सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूज्ड टू बी हियर। तक्षशिला अगर वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी अगर है तो फिर कहां पे है? इंडिया में है। अभी बेटा बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटीज, कहां पे है? इंडिया में है। तो कौन सी चीज की आप बात करोगे बेटा? ब्रह्मा की बात है। ब्रह्मा मीन्स नॉलेज। इसका जो शेप है बेटा कहां पे मिला है? इंडिया में मिले। एंड बुद्धा प्रीच्ड धम्मा हियर। बुद्धा कौन है बेटा? बुद्धा दैट मीन्स गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ को, गौतम बुद्धा को बेटा क्या हुआ था? ही गॉट रिविलेशंस। ही गॉट रिविलेशंस। रिविलेशन मीन्स उनको ऊपर से कनेक्ट हो गया था। गॉड उनको कुछ रिवील कर दिए थे कि देखो मनुष्य का, बेटा देखो मनुष्य का रियलिटी देखो। उन्होंने फिर राइटियस पाथ में फॉलो करने लगे। उनकी हार्ट को एनलाइटमेंट हुआ, उनको एनलाइटमेंट हुआ, उनका अंतर आत्मा जाग उठा। और जब जाग उठा तो फिर दुनिया की सारे मोह माया को छोड़ करके वो फिर आगे चलने लगे। राइट, आगे बेटा सारनाथ में, आगे गया में जाके उन्होंने फिर पेड़ के नीचे बैठ के जो है मेडिटेट किया करते थे। ये जो मेडिटेशन, मेडिटेट करके बेटा किन से कनेक्ट होते थे? खुद को ब्रह्मा से कनेक्ट करते थे। ब्रह्मा रिफर्स टू व्हाट? गॉड। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ब्रह्मा गॉड है, मुस्लिम माइथोलॉजी के अनुसार अल्लाह है, और बाइबल के अनुसार आप जाओगे तो फिर वो ईश्वर है। हम लोग मस्जिद में जाके क्या करते हैं? गॉड से कनेक्ट होते हैं। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ के कनेक्ट होते हैं। हम लोगों में भी कुछ लोग जो है बेटा नदी के किनारे बैठ के, पेड़ों के बीच में, फॉरेस्ट में, जंगल में कनेक्ट कहीं से भी हो सकता है। राइट, तो ये जो इंफॉर्मेशन कहां अवेलेबल है? ओनली इन इंडिया, ओनली इन इंडिया। तो सुब्रमण्यम भारती रियली फील्स जॉय, रियली फील्स प्राउड। मैं उसी कंट्री का, उसी देश का नागरिक हूं जिस कंट्री में हर चीज अवेलेबल है। एंड नाउ ऑफ होरी एंटिक्स इज भारत। सबसे पुरानी चीजों में भरा हुआ है भारत। सबसे पुरानी चीजों में भारत भरा हुआ है, यानी कि सबसे पुरानी इंफॉर्मेशन भी यहां पे है। शी इज पियरलेस, शी इज पियरलेस। पियरलेस मीन्स इसका कोई जोड़ी नहीं है, इसका कोई तुलना नहीं है। ओके, लेट्स प्रेज हर। सब लोग मिलकर इनका तारीफ करें, इसकी तारीफ करें। ओके, नाउ कम बैक। डेंजर शैल नॉट, ये थर्ड स्टैंजर। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर। स्केयर मीन्स टेरिफाई। टेरिफाई मीन्स अफ्रेड। हम लोगों को अब डेंजर हम लोगों को डरा नहीं सकता है। एंड पॉवर्टी शैल नॉट शियर आवर सोल। पॉवर्टी, गरीबी अब हम लोगों को क्या नहीं कर सकता है? शियर मीन्स ड्राई अप, शियर मीन्स रोस्ट कर देना। राइट, कोई चीज को बेटा सपोज, क्योंकि आप कोई धूप में, एकदम चिलचिलाती धूप में अगर आप 2 घंटा बाहर काम करो, आपके चेहरा क्या हो जाएगा? कॉपर लाइक बन जाएगा ना। तो वो जो रोस्टेड लाइक फील होता है फिर। या फिर कोई चीज को आप बेटा सुखा दो बेटा, तो ऊपरी हिस्सा, ऊपरी पार्ट क्या हो जाता है बेटा? ब्राउन कलर, ब्राउन लेयर बन जाता है ना। तो दैट इज कॉल्ड शियर हियर। वाई कर? तो कुछ लोगों को गरीबी इतना सुखा देते हैं, इतना वीक कर देता है, वो इट इज यूजिंग दिस वर्ड्स। अब हमारा इंडिया क्या नहीं करेगा? किसी को गरीब नहीं रखेगा। राइट, नो वन विल बी पुअर देयर इन इंडिया। सेल्फ इंटरेस्ट शैल नॉट ड्राइव अस टू मीननेस। जो पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं? पॉलिटिशियन लोग ग्रीडीली क्या करते हैं? सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं और लोगों को छोड़ देते हैं। नहीं, आज की डेट में सारे लोग जाग चुका है। दैट मीन्स टुडे पीपल हैव अवेयर्ड, पीपल आर नाउ अवेयर्ड। तो फिर पॉलिटिशियन लोग इन लोगों को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। फिर अपना हक लेने के लिए लोग, कॉमन पीपल आगे स्टैंड हो रहा है फिर। तो पोएट कह रहा है कि दैट मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट शैल नॉट ड्राइव अस टू मीननेस। तो जो लीडर्स भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, सिर्फ खुद गर्जी, अब उनको क्या नहीं बना पाएगा? कमजोर नहीं बनाएगा, गद्दार नहीं बनाएगा। मीननेस बोले तो नैरो माइंडेड नहीं बनाएगा, वो थोड़ा सा कमजोर दिमाग वाले या फिर जो है चीप मेंटालिटी के इंसान नहीं बनाएगा। क्योंकि वो जान रहा है कि अगर हम ग्रेटनेस दिखाएंगे, अपना पॉकेट भरना शुरू करेंगे, तो फिर लोग हमें छोड़ेंगे नहीं।
आ जाओ। एंड कावर्डली इंडिफरेंट शैल नॉट शीज फॉर एवर। अगर हम कायर बन के जिएंगे, कायर बोले तो डरपोक, डरपोक बन के जिएंगे तो फिर क्या होगा? दिस विल नॉट बी गुड रिटर्न्स। हियर आवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी। हम लोगों की इस जमीन में ही, इस देश में ही क्या है? देयर इज ओवरफ्लो ऑफ हनी है, ओवरफ्लो ऑफ मिल्क है। हाँ, ओवरफ्लो ऑफ मिल्क है। इस कंट्री में क्या नहीं है? मिल्क की भी सप्लाई है, हनी का भी सप्लाई है। लाइक दिस देयर आर सम अदर फूड मटेरियल्स आल्सो। एंड perennial is the supply of fruits and corns. Perennial means first to that means that is continuing for a longer time. साल में एक बार, दो बार, तीन बार भी हो जाता है बेटा। क्या करते हैं किसान लोग आज की डेट में? इतना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके किसान लोग क्या कर रहे हैं? एक ही लैंड से दो तीन टाइप का फ्रूट्स, कॉर्न्स उगा दे रहे हैं ना। तो दैट्स व्हाई पोएट इज फीलिंग प्राउड। आज हम लोगों को पॉवर्टी शैल नॉट सीआर अस एनीमोर। क्यों पॉवर्टी नहीं रहेगा अब? कि हमारे इंडिया में आज इतनी सारे फलन हो रहा है, फसल हो रहा है, कॉर्न हो रही है, राइट? तो ये जो एबंडेंस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, इस प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा ना, तो गरीब नहीं रहेगा, राइट? और जो थोड़ा सा और अर्निंग करने वाले होंगे उन लोगों का भी जेब भरा रहेगा फिर, राइट? Here our land overflows with milk and perennial is the supply of fruits and corn. Ours is the famed Aryan land of Bharat. सबसे पहले जो है इंडिया में कहा जाता है कि आर्यन लोग, when there was an Indus civilization ना, इंडस सिविलाइजेशन के टाइम में बेटा जो लोग यहाँ पे आर्य लोग रहा करते थे, आर्य लोग से ही बेटा इंडिया धीरे 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 बढ़ने लगे ना। तो हमारे पूर्वज लोगों का नाम है आर्यन है, राइट? And ours is the famed, very popular one, famous one, all over the world. आर्यन लोग रहा करते थे, और जहां पे आर्यन लोग रहते थे वही जगह का नाम है भारत है। She is peerless. Let's praise her. सब लोग मिलकर इसकी तारीफ करें। So this is all about the poem. First stanza, second stanza, third stanza. Here some words are there, word meanings are there. Gallant meaning brave, sage means logical and knowledgeable persons. Okay. Sanctified means purified, पवित्र करना. Okay, made good, made better ones. Okay, hoary refers to related to old things. Okay, now sear ये word जो है बेटा ध्यान दियो, sear refers to scorched, जिसको कहते हैं roasted ones. Okay, and then she's means stopped. Perennial means continuing for a long time. आ जाओ, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स, इंडिया की जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स जो दैट वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, वो क्या है बेटा? उपनिषद्स। ओके, लेकिन उपनिषद से भी बेटा उससे पहले की जो बुक्स है बेटा वैदिक बुक्स कहा जाता है, वेद। देयर आर 4 वेद्स ना, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, अब उपनिषद्स क्या है? उपनिषद्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ स्क्रिप्चर्स, knowledgeable text tells the nature of self and ब्रह्मा कौन है? गॉड है। आत्मा कौन है? इंडिविजुअल आत्मा है, सोल है। तो इसका जो इंफॉर्मेशन है वो किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में है, राइट? पुराण से, देन गीता है। सो फाइनली आई मीन टू से दैट पोएट टेल्स हियर व्हाट, दैट आवर इंडिया इज ए रिच कंट्री। रिच इन द सेंस पैसे से तो है ही है बेटा, मिनरल से है, नेचुरल ग्रीनरी से है, नेचुरल लैंड से है, इसकी ब्यूटी से, इसकी इंफॉर्मेशन से, हर चीज़ों से, टेक्निक से, एक्सपर्ट से, वॉरियर से, साइंटिस्ट से, आप जो है मान लो फिर एडमिशन डॉक्टर से, इंजीनियर से, टीचर से, आप जैसे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट से, किस चीज़ की बात किया जाए जहाँ जो इंडिया में नहीं है? सुब्रमण्यम भारती मेक्स अस फील प्राउड। मैं उसी कंट्री का आज़ाद इंसान हूँ जो कंट्री के बारे में सुब्रमण्यम इज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू ऑल। देखो रिलेटेड क्वेश्चन देखो कैसा कैसा है, और आई होप कि बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन करोगे। थैंक यू।